तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश है जो कि इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से की गई है। जानबूझकर ये किया गया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, आम लोगों को निशाना बनाया गया है। आम लोगों की इस हमले में मौत हुई और ना सिर्फ आम लोगों की बल्कि जो मिलिट्री लीडर्स हैं ईरान के, उनकी भी मौत हुई है। और ये बात अब यूएन में उठाई है ईरान ने। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यूएन की तरफ से और कुछ क्या बयान सामने आता है। This morning, the United States regime jointly and in coordination with the Israeli regime initiated an unprovoked and premeditated aggression against the Islamic Republic of Iran for the second time in the recent months, while deliberately attacking civilian populated areas in multiple large cities of Iran where millions of people reside. As a result of this brutal armed attack, hundreds of civilians have been killed and injured. The aggression and atrocious crime of the United States regime and the Israeli regime and the deliberate and persistent targeting of civilian infrastructure are ongoing. In addition to the numerous civilian residential buildings, the aggressors have also targeted a school in the city of Minab, Hormozgan province, killing more than 100 children. The number of innocent civilians continues to rise. This is not only an act of aggression, it is a war crime and a crime against humanity. तो यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में इमरजेंसी बैठक के दौरान अमेरिका ने ईरान के आरोप पर करारा जवाब दिया है। अमेरिका के एम्बेसडर माइक वॉल्स ने कहा कि ईरान ह्यूमन राइट्स का मजाक उड़ा रहा है। उसने अमेरिका के साथी देशों कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कतर, जॉर्डन पर हमले किए हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट के देश हैं। ईरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर रहा है। अमेरिका के लिए उसके साथी देशों की सुरक्षा कंडीशनल नहीं है। तो The sad irony is that this same regime will attempt to lecture us today about human rights and the rule of law. Its presence here in this council makes a mockery of this body. But where the UN lacks moral clarity, the United States of America will maintain it. Indiscriminate and unprovoked attacks by the Iranian regime today against our regional partners, Kuwait, the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Jordan, and others, reinforce precisely why such actions are necessary. The regime has not only struck military assets, but civilian infrastructure as well. Those who stand with us must know that their security is not negotiable. The safety of our allies is not conditional. It is assured. The bottom line is this, colleagues. Our allies and partners can count on the United States and can count on President Trump. Colleagues, peace is not preserved by appeasing those who threaten it. Peace is preserved through strength in the face of terror. History has taught us that the cost of inaction is far greater than the burden of decisive action. And our president, President Trump, has taken that decisive action today. शोएब, यूएन में जिस तरीके से इमरजेंसी मीटिंग जो है बुलाई गई और तमाम ईरान की तरफ से आरोप लगाए गए और अमेरिका की तरफ से भी, उनके एम्बेसडर की तरफ से भी सामने आया, इस पर यूएन की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्या कोई कानून उल्लंघन की पे बात की जा सकती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से? देखिए, दुनिया को ये सच्चाई मालूम है कि यूएन सिर्फ बात कर सकता है, उसको ताकतवर जो दुनिया के देश है वही चलाते हैं अपने मन मुताबिक। तो अमेरिका या इजराइल के खिलाफ वो कभी कुछ कह भी सकती है ये संस्था, आप सिर्फ बातों में उसके अलावा कभी कुछ ये कह नहीं सकती। जिस तरह से हमने एक इतिहास लंबा देखा है, इस तरह की चीजें नहीं है वहां पर कि कोई वो एक्शन ले लेगा या तमाम चीजें, क्योंकि हम ये बार बार देखते हैं कि सिर्फ कंडम करना, किसी भी जगह हमला होता है
की जो एक हम कहे कि एक क्रेडिबिलिटी वो रह गई है। उस तरह से जिस तरह से एक यूएन को बनाया गया था कि ये दुनिया में शांति के लिए तमाम, अगर कोई किसी देश को लिए काम करेगी तो उस तरह से इस संस्था का काम पिछले कुछ सालों में तो नजर नहीं आया। अमेरिका ने जिस तरह से चाहा वो यूएन को चलाया है, और वही इजराइल ने पिछले दिनों जब जिस तरह से जो हमले गाजा में किए, और उस वक्त भी यूएन कहता रहा कि वहां बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, तमाम चीजों की बातें कही जाती रही, तो उसमें भी इजराइल ने भी उसकी बातों को नहीं माना। तो अभी भी कोई ये सिर्फ एक बातचीत आप एक लगाए, ये तमाम चीजें तो उतना ज्यादा कोई प्रभाव उसका पड़ने वाला नहीं, बल्कि जमीन पर ग्राउंड पर जो चीजें हो रही है वो ही ये तय करती है कि दरअसल क्या हो रहा है। क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, ईरान अमेरिका के अड्डों को निशाना बना रहा है और इजराइल पर हमला कर रहा है, यही सच्चाई है। और यूएन में वो ताकत नहीं कि वो इस पूरे युद्ध को रोक सके, रुकवा सके, इस तरह की चीजें नजर नहीं आती। तो यही तमाम चीजें हैं। अमेरिका जो बाहर कह रहा है, जो बाहर बातें कही जा रही है उसकी तरफ से कि ईरान में जो रिजीम है वो चेंज होकर रहेगी, तब तक हमले नहीं रुकेंगे, वही वो दूसरे मंचों पर भी कह रहा है। इजराइल भी यही बात कह रहा है, और ईरान कह रहा है कि हमला चूंकि उस पर किया गया है, पहले भी उस पर हमला किया गया था, उसने शुरुआत नहीं की है, तो उसको अपनी रक्षा करने का हक हासिल है, उसके लोग मारे जा रहे हैं। ये दोनों तरफ से बातें इस वक्त चल रही है, और कोई भी जो रास्ता है इन बातों में निकलता हुआ वो दिखाई नहीं देता कि कोई बातचीत या इस तरह की कोई देश मध्यस्थता करने का इरादा भी रखता हो। अभी तक ये चीजें भी नजर नहीं आई। टर्की और दूसरे जो देशों ने बात रखी है यूएन की इमरजेंसी मीटिंग में, वो ये कहते जरूर नजर आए कि इस जंग को रुकना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को लेकर या इजराइल को लेकर बात और कर सके। अमेरिका दुनिया में ताकतवर देश है, और ट्रंप जब से आए हैं आप देख रही हैं कि उनकी जो बातें हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो कुछ इसी तरह का है कि वो जी शोएब, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बताना जरूरी है। ईरान ने अमेरिका के साथी देशों पर अब हमले करना शुरू कर दिया है। ईरान ने बहरीन पर हमले किए, बहरीन के गृह मंत्रालय ने ट्वीट इसको लेकर किया है। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। बहरीन एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, बहरीन की तरफ से कहा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां इजराइल अमेरिका ने शनिवार को हमला किया था, अब ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, पलटवार करना शुरू कर दिया है। और ईरान ने न सिर्फ बहरीन पर बल्कि 8 देशों पर जो अमेरिकी समर्थन में है, जो अमेरिका के समर्थन में है, जहां यूएस के नेवी बेस है, वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। और बहरीन की तरफ से अब ये बात कही गई है, और ड्रोन अटैक एक तरीके से हुआ है। हालांकि बहरीन ने यह भी कहा है कि ड्रोन अटैक हालांकि हुआ, लेकिन ड्रोन हमले में कोई नुकसान उन्हें नहीं पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर, जहां ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि खामेनेई की मौत नहीं हुई, अब ऐसे में ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, पलटवार करना शुरू किया, और बहरीन में भी बड़ा हमला البلور بخش عليكي इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद से ईरान का जबरदस्त हमला अब जारी है। देर रात ईरान ने तेल अवीव में मिसाइलें दागी, जहां ईरानी मिसाइल गिरने के बाद सड़क पर आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, और साथ ही रात भर सायरन बजने की आवाजें भी सुनाई देती रही। तो ईरान भी अब एक तरीके से पलटवार करने की स्थिति में अब आ गया है, और अमेरिका और इजराइल को वो जवाब देना चाहता है। और इसीलिए जो अमेरिका के साथी देश हैं, यूएस के जो साथी देश हैं, उन पर वो हमला कर रहा है। जहां एक तरफ उसने इराक, ओमान, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब पर हमला किया, तो वहीं बहरान पर भी हमला किया। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद सड़क पर किस तरीके से आग लग गई है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात भर वहां पे सायरन बजाए गए और सायरन बजने की आवाज सुनी गई। हालांकि तेल अवीव में ईरान का यह जबरदस्त हमला हुआ है। ईरान ने एक बार फिर से दुबई पर हमले शुरू कर दिए।
तो ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से दुबई पर हमला कर दिया है। देर रात ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी सायरन बजने लगे, लोग एयरपोर्ट से बाहर की तरफ भागने लगे, अफरा तफरी वहां मच गई और बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 लोग घायल हुए। अटैक के बाद पूरे एयरपोर्ट पर धुआं हो गया और काले धुएं का गुबार देखने को मिला। हालांकि इस हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है। तो ईरान ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया है और अमेरिका को डायरेक्ट पलटवार हालांकि नहीं किया है, लेकिन अमेरिका के जो साथी देश हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की घायल होने की खबर है। हालांकि वहां जब लोग मौजूद थे उस वक्त जब ये हमला हुआ, अफरा तफरी मच गई, लोग सहम गए और इधर से उधर भागने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सहम गए लोग एयरपोर्ट पर और अपनी जान बचाने के लिए वो इधर से उधर भागने लगे। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। कई हिस्सों में उड़ानें रोक दी गई हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुबई के एयरपोर्ट पर अब फंस गई हैं। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन के लिए बर्मिंघम जा रही थी और दुबई उनका कनेक्टिंग पॉइंट था, लेकिन तनाव बढ़ने के बाद अब दुबई एयरपोर्ट पर परिचालन ठप हो गया है। सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वहां के डरावने हालात को लेकर भी पोस्ट किया है, बताया है कि किस तरीके से वो फंस गई है और जिस तरीके से ईरान की तरफ से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं उसे लेकर भी उन्होंने बात कही, एक्स पर पोस्ट किया और जो वहां पे डरावने हालात हैं, जो स्थिति वहां पे बनी हुई है, ये बात उन्होंने इस पोस्ट में बताई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अफरा तफरी मच गई और कई परिवार इसमें फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम सभी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकले और जैसा भी हो, इस तरीके से भी हो, हम इस स्थिति से बाहर निकले और अपनी जान बचा सके। हालांकि दुबई एयरपोर्ट पर हुए ईरान के हमले के बाद जहां तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, तो ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय यात्री भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करें और सिंगर सोनल चौहान की, तो दुबई एयरपोर्ट पर वो फंसी हुई है और वहां से निकालने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है उन्होंने। एक्ट्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैं अभी दुबई में चल रहे संकट की वजह से यहां पे फंस गई हूं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और भारत लौटने का कोई साफ रास्ता उन्हें यहां पे नजर नहीं आ रहा है। मैं घर वापस जाने के लिए सरकार से सुरक्षित यात्रा के लिए सम्मानपूर्वक मार्गदर्शन चाहती हूं, किसी भी मदद के लिए आभारी हूं। तो ये पोस्ट किया है सोनल ने और जिस तरीके से उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि वो किस तरीके से फंस गई है, जल्द से जल्द उनकी यहां से जो है जान बचाई जाए, उन्हें यहां से जो है निकाला जाए। ईरान पर जारी इजरायली और अमेरिकी सैन्य हमले के बीच तमाम एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, जिसका असर अब हवाई उड़ानों पर पड़ रहा है। तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के जो कुछ हिस्से हैं उसमें एयर स्पेस की पाबंदियां जो है लगाई गई हैं और उन पाबंदियों की वजह से आज 444 फ्लाइट्स कैंसिल होने की उम्मीद है। वहीं कल डोमेस्टिक एयरलाइंस की 410 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि कल जिस तरीके से हमला हुआ ईरान पर, और अब ऐसे में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले लोग अपनी फ्लाइट का स्टेटस अपनी एयरलाइन से चेक और कंफर्म कर लें। हालांकि डीजीसीए सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों का पूरा पालन पक्का करने के लिए एयरलाइंस के साथ करीबी तालमेल बनाए हुए हैं। तो जिस तरीके से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ ईरान की तरफ से, क्योंकि दुबई यूएस का साथी देश और अब ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, तो सतर्क एक तरीके से हर कोई हो गया है। और एयरपोर्ट पर किस तरीके से हालांकि अफरा तफरी मची जब दुबई एयरपोर्ट पर हमला ईरान की तरफ से किया गया, और हमले के बाद किस तरीके से धुआं हो गया पूरा एयरपोर्ट, उसकी तस्वीरें बार बार आपको हम दिखा रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किया गया, रिटेलिएट अब ईरान भी कर रहा है। और ईरान ने जिस तरीके से ये कहा भी था कि अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत की है, इजराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से
जंग की शुरुआत की है, अब उसको लेकर वो भी पलटवार करेगा। हालांकि इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया ने कर दी है। तो ये बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की पुष्टि ईरानी मीडिया ने अब कर दी है। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से शनिवार को हमला किया और कहा यह जा रहा था ईरान की तरफ से कि सुप्रीम लीडर खामेनेई बंकर में छिपे हुए हैं, बंकर में सुरक्षित हैं, लेकिन अब ईरान की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब आयतुल्लाह अली खामेनेई नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है और जो ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका की तरफ से चलाया जा रहा था उस ऑपरेशन में आयतुल्लाह अली खामेनेई नहीं रहे। हालांकि इजराइल की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि हमने इस ऑपरेशन में आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार गिराया है। उनकी डेड बॉडी जो है मलबे के नीचे दिखी है और मलबे के नीचे उनकी डेड बॉडी मिली है। अब ऐसे में ईरान इस बात की बार बार इसको नकार रहा था, बार बार इस बात को जो है ठुकरा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो बंकर में छिपे हुए हैं, बंकर में वो सुरक्षित है और वो बंकर ऐसा है कि वहां पे अमेरिका और इजराइल के जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं वो भी वहां कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब ईरानी मीडिया ने जो ये पुष्टि की है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है। तो इजरायली हमले में खामेनेई की मौत हो गई है, प्रेस टीवी की ये बड़ी खबर। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा, ये पुष्टि एक तरीके से की जा चुकी है कि अब आयतुल्लाह अली खामेनेई यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर, इजराइल और अमेरिका के जो ऑपरेशन था उसमें उनकी मौत हो गई है और वो अब नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में भी। हालांकि इसके आगे ईरान की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात की तो पुष्टि हो गई है क्योंकि शनिवार को जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की तरफ से तमाम हमले किए गए, राष्ट्रपति भवन हो या फिर वो कंपाउंड हो जहां पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई थे। हालांकि इससे पहले ईरान की तरफ से कंफर्म किया जा चुका था कि उनकी यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती की मौत हो गई है। लेकिन अब ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर की इस हमले में मौत हो गई है। तो जो दावे इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे थे वो दावे कहीं ना कहीं सच निकले हैं। शोएब, ये बड़ी खबर और ईरान का क्या इंपैक्ट ईरान पर इसका पड़ेगा, क्योंकि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो अब नहीं रहा और ये बड़ी खबर हालांकि ईरान के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए है। बिल्कुल, ये न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर कंफर्म होना यकीनन एक धचका है अब सभी जो ईरान से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। सुप्रीम लीडर ही पूरे देश को तो बिल्कुल शोएब, जिस तरीके से सुप्रीम लीडर को लेकर जो खबर आ रही है ईरान की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से कि उनकी मौत की पुष्टि अब ईरान ने कर दी है और हालांकि बार बार इस बात को नकार रहा था ईरान की नहीं, आयतुल्लाह अली खामेनेई अभी बंकर में सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित रखा गया है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब ऐसे में इजराइल और अमेरिका की ये बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है क्योंकि उनका टारगेट आयतुल्लाह अली खामेनेई थे और अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि एक क्रूर तानाशाह हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, क्योंकि ईरान में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे, जेंजी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, वहां की आवाम ने अपने ही सुप्रीम लीडर के खिलाफ प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था, सड़कों पर वो उतर आए थे और फिर ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया। ईरान की सरकार की तरफ से, सुप्रीम लीडर की तरफ से उन पर जो है प्रदर्शन किया गया, उन पर भी जो है उन्हें रोकने के लिए तमाम कोशिशें उनको दबाने के लिए की गई और तब से ही अमेरिका ये बात कहता हुआ आ रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई एक क्रूर तानाशाह हैं और अब इस तानाशाह की मौत एक तरीके से अमेरिका और इजराइल ने कर दी है। तो ये बड़ी जीत इजराइल और अमेरिका की, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का जो टारगेट था वो टारगेट अब उन्होंने अचीव कर लिया है और ये ईरान के लिए, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि मिडिल ईस्ट हो या फिर पूरी दुनिया हो, सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद ये एक बड़ा झटका ईरान के लिए है और एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट के लिए, मध्य पूर्वी देशों के लिए और पूरी दुनिया के लिए है। तो शोएब, क्या कुछ और ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया है?
देखिए, अभी मैं एक्स पर ट्वीट देख रहा हूं और उस पर भी ये पुष्टि की जा रही है कि जो आयतुल्लाह खामनेई है उनकी मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा झटका जो इस पूरे युद्ध की और दशा बदल देगा। ये एक तरीके से, क्योंकि पहले भी ये अमेरिका और इजराइल कह रहे थे कि उनका लक्ष्य या तो इस रिजीम को चेंज करना है या फिर आयतुल्लाह खामनेई को मारना है। और यही चीजें कल जो हमला हुआ जिसके बारे में और हम और आप बात कर रहे थे कि 30 बम वहां पर बरसाए गए, तो वहां पर खामनेई मौजूद थे। पहले खबर आई कि उनके बेटी, दामाद और दूसरे लोग मारे गए और ये जो हमला किया गया था, सबसे पहला हमला यही था, उसमें खामनेई की भी मौत हो गई। आज जो युद्ध पिछले कल से शुरू हुआ और पहले ही दिन खामनेई की मौत हो गई, तो यकीनन ईरान के जो हौसले हैं वो इससे पस्त हो जाएंगे। ये भी चीजें हैं और एक मनोबल पर एक बहुत बड़ा असर ईरान के इससे पड़ने वाला है, क्योंकि आपका जो सुप्रीम लीडर है उसकी ही मौत हो गई है। इससे पहले जो युद्ध हुआ था उसमें भी बहुत सारे जो बड़े टॉप कमांडर थे ईरानी सेना से जुड़े हुए और जो दूसरे लोग थे वो मारे गए थे। और इस खामनेई का मारा जाना यकीनन पिछले 40 सालों में हम देख रहे थे, पहले आयतुल्लाह खुमैनी और फिर आयतुल्लाह खामनेई लगातार ईरान को चलाते रहे। राष्ट्रपति कोई भी बना, लेकिन सुप्रीम लीडर की हैसियत से सबसे बड़ा ओहदा जो ईरान में है उसमें सबसे बड़ी हैसियत आयतुल्लाह की होती है, जो सुप्रीम लीडर की, वही तमाम चीज़ों को तय करते हैं। तो इस ऐसे में खामनेई की मौत की खबर यकीनन पूरी दुनिया के जो शिया मुसलमान हैं या जो सुन्नी भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उन तमाम के लिए एक बड़ी खबर है। और आज ऐसा हो मौत, जैसे ये मौत की पुष्टि चूंकि ईरान की तरफ से अब कर दी गई है, पूरी दुनिया में हम जहां जहां शिया मुस्लिम या दूसरे जो लोग हैं अरब देशों में भी आज प्रदर्शन होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि दूसरे जो लीडर्स जब भी मारे गए, हसन नसरुल्लाह को मार दिया था इजराइल ने लेबनान में, तब भी प्रदर्शन हुए थे। उसी तरह की स्थिति अब बनती हुई दिखाई देगी और अब एक तरीके से ईरान के लिए भी और अस्तित्व का भी सवाल है। जो वर्तमान लीडरशिप थी उसका सबसे बड़ा लीडर ही बिल्कुल मारा गया है। हालांकि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में अब 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी कर दी गई है और जिस तरीके से ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अली खामेनेई, उन्हें मार दिया गया, उनकी मौत हो गई है इस ऑपरेशन में इजराइल और अमेरिका के। और अब इस बीच खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। 40 दिन अब राष्ट्रीय शोक में ईरान रहेगा और जिस तरीके से ईरान में जो हमला किया था अमेरिका और इजराइल में, शोएब, इसे कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल की बड़ी जीत है। जो उनका टारगेट था कि अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारे और इसकी जो है अचीव भी एक तरीके से उन्होंने कर लिया है, तो ये बड़ी जीत अमेरिका और इजराइल की कहा जा सकता है इसे। देखिए, यकीनन उस लिहाज से एक बड़ी जीत है कि अमेरिका ने और इजराइल ने जो कहा कि हम मार देंगे खामनेई को, वो मार दिया गया। लेकिन इसमें जो बड़ी चीज है अब वो ये नजर आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि पहले से ही एक लीडरशिप को तैयार, एक नामों को तैयार रखा गया है कि अगर किसी की भी मौत होती है तो उसकी जगह ये शख्स लेगा और फिर जंग को कंटिन्यू किया जाएगा। तो क्या उन तमाम चीजों को लेकर आगे ईरान बढ़ पाएगा? और जो भी, क्योंकि पिछले कई दशकों से ईरान की सत्ता पर, ईरान की हर चीज पर खामनेई का असर था, हर तरह से उसका जाना एक बड़ा धचका होगा तब भी ईरान के लिए और ईरान से जुड़े हुए जितने भी हम प्रॉक्सीज देखते हैं उन तमाम के लिए। अब ये जो जंग है वो यकीनन अंजाम तक पहुंचेगी। अब ये चीजें नजर आ रही है और अंजाम यही हो सकता है कि ईरान में इस रिजीम का खात्मा हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा आपका जो लीडर है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका के हमले में मारा गया है। और देखना यही होगा कि अब होता क्या है, कौन जो अली खामनेई है इनकी जगह लेता है, क्या वाकई इस तरह की स्थिति हो भी पाएगी या नहीं, या अमेरिका इजराइल अब और ज्यादा ताबड़तोड़ हमले करके
जो भी वर्तमान रिजीम है उसको नेस्तनाबूद कर देंगे और रिजीम को चेंज कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बड़े चीज़ें देखने को मिलेगी और पूरी दुनिया से जिस तरह के अरब देशों में भी कल से लगातार हमले हो रहे हैं, अरब शासक चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, उन तमाम जगहों से किस तरह की जो प्रतिक्रिया है पूरी दुनिया से वो खामनेई की मौत पर आती है, ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और क्या ये युद्ध अब यहाँ खत्म होगा? क्योंकि ये भी हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल ये कहे कि हमारा जो टारगेट था खामनेई को मारना, अब ईरान की जनता को तय करना है कि वो रिजीम को किस तरह से चेंज करती है। क्योंकि कल अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से जो बयान आया था ट्रंप के, उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर अमेरिका हमले रोक भी दे तो आपके पास ये मौका है कि आप आगे बढ़े और सत्ता जो रिजीम है उसको उखाड़ फेंके और उस पर कब्जा कर ले, आपका शासन आपका इंतजार कर रहा है। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। अब वो तमाम चीजें क्या नजर आएगी, ये वाकई पिछले कई दशकों के इतिहास में मिडिल ईस्ट के सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले हमने कई लोगों का वहां पर की हत्या या टारगेट बनाते हुए देखा। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मारा था, कर्नल गद्दाफी वहां पर मारे गए थे। इसके अलावा कई और शासक वहां पर मिडिल ईस्ट की जो देश है वहां जहां जहां भी अमेरिका ने हमले किए वहां पर उनको मार दिया गया। अब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी और अब आयतुल्लाह अली खामनेई का मारा जाना इसी तरह की बड़ी घटनाओं में से, मिडिल ईस्ट की या जंगी इतिहास की बड़ी घटनाओं में से एक है। इस लिहाज से कि पिछले कई दशकों से ईरान ही नहीं बल्कि ऐसी तमाम देश जो ईरान से जुड़े हुए हैं या ऐसे प्रॉक्सीज या ऐसे संगठन जो दुनिया भर में जिनके फॉलोअर्स हैं, खामनेई के फॉलोअर्स या खामनेई के जो समर्थक है वो पूरी दुनिया में मौजूद है। और मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि आज कई जगहों पर हो सकता है कि बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिले और ये खबर सुनने के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। बिल्कुल शोएब, आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर जो आपने बात कही कि ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ी खबर है और एक झटका जरूर है। हालांकि इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से खामेनेई की बेटी की मौत हुई है और हमले में इस बात की पुष्टि हालांकि ईरानी मीडिया ने कर दी थी और अब एक बार फिर से इजराइल के हमले में खामेनेई की बेटी की मौत हुई है। आप सभी को बता दें कि खामेनेई के दामाद और पोती की भी मौत हुई है। तो ईरानी मीडिया की तरफ से जहां एक तरफ इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस ऑपरेशन में मारे गए, तो वहीं इजराइल के हमले में खामेनेई की जो बेटी हैं उनकी भी मौत हुई है, वहीं खामेनेई के दामाद और पोती की भी मौत हुई है। तो जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने जो शनिवार को हमला किया था, एक के बाद एक 30 मिसाइल जो है दागी थी कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में उनका परिवार था, जहां पर उनका पूरा परिवार था, जहां पर खुद आयतुल्लाह अली खामेनेई हालांकि थे, उन पर हमला एक तरीके से किया गया और इस हमले में खामेनेई की बेटी की मौत हुई, खामेनेई के दामाद की मौत हुई और उनकी पोती की भी मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर और एक बड़ा झटका ईरान के लिए, क्योंकि ईरान ने इस हमले में, इस युद्ध में काफी कुछ खो दिया है। ना सिर्फ इजराइल जिस तरीके से हमला कर रहा है, अमेरिका जिस तरीके से हमला कर रहा है, इसमें खामेनेई की बेटी, खामेनेई के दामाद और पोती की मौत हो गई और यहां तक कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की इसमें मौत हुई है और साथ ही मिलिट्री लीडर्स जितने भी थे, 7 मिलिट्री लीडर्स, उनको भी ईरान ने गवा दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो युद्ध स्तर है, जो युद्ध का जो लेवल है, क्या वो और भी ज्यादा बढ़ेगा या फिर ईरान इन सब को गवाने के बाद, इतना झटका लगने के बाद अब खामोश बैठ जाएगा, वो देखना होगा। हालांकि अब इजराइल के हमले में किस तरीके से पुष्टि ईरान की मीडिया ने कर दी है कि खामेनेई की बेटी की मौत हालांकि इस हमले में हो गई और खुद आयतुल्लाह अली खामेनेई इस जो है हमले में नहीं रहे, उनके दामाद की मौत हो गई, उनकी पोती की मौत हो गई। तो एक तरीके से अब ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पनप रहा है कि क्या अब आगे उत्तराधिकारी कौन होगा। जिस तरीके से सुप्रीम लीडर को ईरान ने गवाया है, उसके बाद आखिर जो सुप्रीम लीडर होगा वो कौन होगा और किसके पास ईरान की कमान होगी। सवाल कई सारे हैं और ईरान की तरफ से क्या कुछ इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे वो देखना होगा। लेकिन जो इजराइल और अमेरिका ने कहा था, जो इजराइल और अमेरिका ने टारगेट अपना बनाया था, उस टारगेट को उन्होंने पूरा कर लिया है और आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया है।
जिस तरीके से कंपाउंड में हमला किया, राष्ट्रपति भवन, ईरान के राष्ट्रपति भवन में भी 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी, एक के बाद एक हमले किए और इस हमले में खामेनेई के पूरे परिवार को इस तरीके से तबाह एक तरीके से कर दिया है। उनकी बेटी की मौत हो गई, खामेनेई के दामाद की मौत हो गई, उनकी पोती तक की मौत हो गई है और खुद अयातुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ईरान को ये बहुत बड़ा झटका। और ईरानी मिलिट्री लीडर्स की बात करें तो वहां भी एक तरीके से शोक है, क्योंकि मिलिट्री लीडर्स भी हालांकि इस हमले में मर गए हैं। तो शोएब, जिस तरीके से ये खबरें सामने आई, अयातुल्लाह अली खामेनेई नहीं रहे, उनकी बेटी की मौत हो गई, दामाद भी नहीं और पोती की भी मौत हो गई है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो युद्ध स्तर है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, ईरान की तरफ से और भी ज्यादा अटैक जो हैं, हमले जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे अमेरिका और इजराइल पर? जो भी अब होगा वो निर्णायक होगा। ईरान की तरफ से भी अपनी जितनी भी पूरी ताकत है इस क्योंकि अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद यकीनन जितनी भी ईरान में ताकत होगी, जितनी भी उसकी क्षमता होगी, वो उस क्षमता से हमला करेगा, ये बात तय है। और मिडिल ईस्ट में एक तरीके से अब नक्शा बदलता हुआ दिखाई देगा। और इजराइल और अमेरिका को भी ये बात मालूम है कि अगर ये वक्त उन्होंने जरा भी ढील छोड़ी तो फिर उनके लिए भी आगे सत्ता बदलना या इस तरह की चीजें मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे बड़े जो लीडर थे ईरान के वो मारे